Now listen gentlemen, we are switching over to some other types of graphs. The slide is in front of you. Concentrate, and then I'll be solving every concept with the help of an example. आप पढ़ते जाइएगा और देखते जाइएगा, and how do we make the graphs and charts. The first one is the bar graph. A bar graph represents the data by using vertical or horizontal bars. देखिए दोनों तरह की bars हैं आपके पास, vertical as well the horizontal bars, whose heights or lengths. The moment you are making a vertical bar graph, so you'll be going for the heights, and the moment you are making the horizontal bar graphs, then you'll be going for the lengths. Represent the frequencies of the data. The heights or lengths होती क्या होंगी? These are the frequencies, whatever the data value is given to you. Now see, it's an example. The table shows the average money spent by the first year college student. Draw a horizontal and vertical bar graph for this data. So this is a student who is a first year college student, and he is spending some amount on these following 3, 4, 5 items. Number one is on electronic items, he is spending $728. Dorm decor, $344. What is dorm decor? Actually, this is the abbreviation of dormitory decoration. Dormitory is what? The students who stay in the hostel, there are two types of the rooms available to them. One is a small room in which a single student stays, that is called the cubicles. And another's big size room, there 3 students are put together to stay in one room. Those are called dormitory. And surely the student needs to decorate its room or portion of the room, that is the dorm decor. So this is $344 he is spending on that. Then on clothing $141, and on shoes $72. This much is the data given to you. Well, there may be more expenses, but if the author is taking only these 4 items, okay, you have to consider only these 4. See its solution. I am making first year college student spending, just expenditures देख लें. The first one, इसका title आप बनाइएगा. ये है horizontal bar graph, and the second one is the vertical bar graph. You have to keep in mind a few steps in your mind. How are we drawing these two graphs? If I consider this first one, first year college student spend expenditures क्या लें, इसको ज़्यादा बेहतर होगा. Draw 2 lines, one is a horizontal line, another is a vertical line. On the horizontal line, this right here the expenses, okay, यहाँ पे इस पे खर्चा करें in dollars, and these are the items. Items are taken vertically and the expenses are taken horizontally. The largest horizontal bar will be at the top. Remember, this is the horizontal bar graph we are making. The largest bar will be at the top, then the next smaller, then the next smaller, and the smallest at the bottom. So you are to arrange your data in such a way. या यूं कर लें, smallest at the bottom लिए shoes, equal width की और equal distances पे आप bars बनाइए. हर बार की width भी same होनी चाहिए और उनके दरमियान distance भी same होना चाहिए. तो shoes आप देख रहे हैं, the lowest value being spent by the student, $72 for the shoes. This is the smallest one. तो shoes को आप सबसे नीचे ले लें. अब 100 से कम में 72 है, approximately before 100 you have to draw or finish that bar. Next is
आप देखिए उसकी वैल्यू क्या है, क्लोथिंग 141 इज क्लोज टू 150। आपका ये तकरीबन देख लें क्लोथिंग के ऊपर ये 150 से थोड़ा सा कम होगा। ये जो लाइन आ रही है दिस इज 141, ठीक है। 141 ये आप निशान लगा के आप यहाँ पे एक बार बनाई है, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। दिस इज फॉर द क्लोथिंग, गिव द सेम इक्वल गैप, फिर एक बार बनाना है। अब इस पे देखिए यहाँ हाइट हमारी कितनी होगी, इसकी सॉरी लेंथ जो होगी 344, बॉम डेकोर 344। लुक हियर 300 से आगे जा रहे हैं, 44 विल बी इन द मिड अप्रोक्सीमेटली, यानी 50 हो जाएगा 350 से थोड़ा सा पहले। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आपकी बार खत्म हो जाएगी एंड सेम बिट्स की बार बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डॉम डेकोर, डॉर्मेट्री की डेकोरेशन हो गई। एंड द लास्ट बार यानी हाईएस्ट लेंथीएस्ट बार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की 728। ये देखें 700 से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 728 और इसके ऊपर आप चलते जाएं, यहाँ पे आपकी बार फिनिश हो जाएगी एंड ड्रॉ दिस बार एंड मेंशन हियर द इलेक्ट्रॉनिक्स। डन, आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट। एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो बैठ के ये लाइनें ड्रॉ कर सकता है। बट रिमेंबर द लेंथिएस्ट बार विल बी एट द टॉप, स्मॉलेस्ट बार विल बी, आप स्मॉलेस्ट से ऊपर चलते जाएं, बेटर from lowest is the smallest. अब ये तो हो गई आपकी horizontal bar chart. For the same data you have to draw the vertical bar chart. Look here, title आपने देना होता है, after giving the title now see यहाँ पे लिखना है shoes, अच्छा shoes है पहला, फिर clothing है, then warm decor है, electronics है। Vertically अब आपने dollars you will take on the vertical, these are the expenses taken on the vertical axis and the items are taken along the horizontal axis. तो शूज आप देखिए 72 पर आके रुक गया, ये आपका था क्लोथिंग 144 पे, 200 से नीचे आना चाहिए था, 144 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे बंद कर, टॉम डेकर थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 700 समथिंग जो था यहाँ तक आ गया, है। तो ये आपका वर्टिकल बार चार्ट है। और वर्टिकल में what concept you have to keep in mind, you'll again start from the smallest to the highest, you will move on the right side, सबसे smallest on the left, then bigger, and the highest will go on the extreme right side. So this arrangement you have to make yourself. अगर नहीं है आपके पास दी हुई तो you arrange the data first in this is the ascending order, lowest से आप highest की तरफ जाते हैं, this is called the ascending order। और यहाँ पे भी ascending नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये भी ascending order है। In both the cases ascending order you have to keep in mind। This is the horizontal and vertical bar charts। Coming to another type of chart that is called the Pareto chart। See the definition first। Pareto is the name of a mathematician, statistician। उसने अपने नाम पर इस चार्ट का नाम रख दिया है Pareto chart। A Pareto chart is used to represent a frequency distribution for a categorical variable। यहाँ पे भी कैटेगरीज के लिए आ रहा था, ठीक है। पिछला वाला डेटा था वो आपका न्यूमेरिकल डेटा था, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल आ रहा है। The frequencies are displayed by the heights of the vertical bars, which are arranged in order from highest to lowest। अब देखिए वर्टिकल बार आपने अभी ऊपर पढ़ी है, ये आपके सामने नजर आ रही है राइट साइड पर, दिस वन, दिस इज योर वर्टिकल बार। मगर Pareto चार्ट में क्या होगा, हाईएस्ट बार विल कम ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड और ये y एक्सिस के साथ जुड़ जाएगा, यानी वर्टिकल एक्सिस के साथ आएगी हाईएस्ट बार, फिर उससे छोटी बार, फिर उससे छोटी बार। इस स्टाइल में आप अरेंज करेंगे तो दिस इज नोन एज द Pareto चार्ट, ठीक है। The frequencies are displayed by the heights of vertical bars, which are arranged in order from highest to lowest। याद रखिएगा हाईएस्ट हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, y एक्सिस के साथ जुड़ा होगा, और फिर उससे नेक्स्ट, और ऑल द बार्स विल बी एडजेसेंट विद ईच अदर, बीच में गैप नहीं होगा। यहाँ ऊपर गैप था, ये देखिए इनके दरमियान गैप्स आ रहा है ना,
ये गैप्स नहीं होंगे और ये ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा, हाईएस्ट इधर आएगा, फिर से नेक्स्ट छोटा, फिर से। दिस इज कॉल्ड द Pareto चार्ट। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिए ये आपकी बुक की एग्जांपल है सारी। द डेटा शोन हियर consists of the number of homeless people for a sample of selected cities. Construct and analyze a Pareto chart for the data. ये डाटा आपको गिवन है, सिटी का नाम दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ होमलेस पीपल आर मेंशन्ड इन फ्रंट। Atlanta, 6,832 people are homeless. Baltimore, this is another state of America, 2,904. Chicago, 6,680 people are homeless. St. Louis, 1,485 people are homeless. Washington, 5,518. So this data is given to you. It is not in the arrange form, remember. आप देख रहे हैं haphazardly, कोई वैल्यू बड़ी भी आ रही है, बीच में आ रही है। First job for you is to arrange the data in the descending order. I mean descending order means the highest value will take first, then next lower, then next lower, and the smallest at the end. So in the descending order you arrange the data first. Okay. Arrange the data from largest to smallest. Largest to smallest जब आप आते हैं इसी को कहते हैं descending order according to the frequency. देखिए ये frequency का सिटी है, अटलांटा में सबसे ज्यादा लोग थे 6,832, then Chicago, then Washington, and then Baltimore, and St. Louis is coming at the end. देखिए वहां पे different तरीके से था, here St. Louis was before this number. तो आप इसको अरेंज करेंगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो यू शुड गो एट द बॉटम। ओके, एंड सी द ग्राफ। ग्राफ टाइटल मस्ट बी गिवन। देखिए चंद लाइंस को ड्रॉ कर दें तो दोज लाइंस विल नॉट स्पीक देमसेल्व्स कि वो किस चीज का ग्राफ है। जैसे एक बच्चा है, तो जी एक बच्चा जा रहा है, हमें नहीं पता कि किसका बच्चा है, इसका क्या नाम है। तो जैसे दुनिया में हर बच्चे का एक नाम रखा जाता है, इन द सेम वे हर ग्राफ का एक नाम होगा। So the title of the graph must be written at the top और उसको अंडरलाइन करते हैं। हमेशा जिंदगी में कोई भी ग्राफ बनाएंगे आप, अगर आपने टाइटल नहीं डाला तो लाइंस खुद नहीं बोलेंगी किस चीज का ग्राफ है, तो यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर द मार्क्स। तो आप इसका ख्याल रखिए, छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं एज फार एज ग्राफ्स आर कंसर्न्ड। टाइटल दें, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या चीज ले रहे हैं ये मेंशन कीजिए। Cities are taken along the horizontal axis, and on the vertical axis what are you taking? जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, जैसे होमलेस पीपल है तो नंबर ऑफ होमलेस पीपल यू विल मेंशन हियर, यू आर टेकिंग ऑन द वर्टिकल एक्सिस। अब अटलांटा सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, देखिए ये आपने सामने नोट किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ अटलांटा इज 6,832। अब ये अटलांटा आपने मेंशन कर दिया, दिस फर्स्ट बार इज शोइंग द अटलांटा। ये बिल्कुल देख रहे हैं वाई एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है। पहला बार जो मेरा बन रहा है, दिस इज एडजेसेंट टू द वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। 6,000 हो गया, 832 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कर लिया, 7,000 है तो 832 यहाँ पे आपने निशान लगा दिया। इसके ऊपर भले आप वैल्यूज लिख दें, फिर 6,832 यहाँ पे मेंशन कर दें कि हाइट कहाँ तक जा रही है, और नीचे नाम लिख दें of the city. This is for the Atlanta. Next is for Chicago. What is the height of the Chicago? 6,680. आप इसको ले जाएं वर्टिकल ऊपर तक 6,000 और 680 तक इसको अप्रोक्सीमेटली हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे वर्टिकल लाइन सेम विड्थ रखिए और वर्टिकली नीचे वापस आ जाए। नेक्स्ट इज फॉर वॉशिंगटन। देखिए वॉशिंगटन की क्या वैल्यू है, 5,518। इसको इसी तक हाइट तक ले जाएं 5,518, उसके ऊपर आप यहाँ बिल्कुल मेंशन कर देंगे 5,518, यहाँ भी मेंशन कर देंगे, यहाँ भी मेंशन कर दें। गुड। बॉल्टीमोर की हाइट लिख दें, फिर इसी तरह सेंट लुइस की हाइट लिख दें। अब आप देख रहे हैं all the bars are adjacent to each other. One thing, they are in the descending order. Second thing, and third thing, that the first bar is adjacent to the y-axis, बिल्कुल जुड़ी हुई है, overlapping with that.
वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस। तो ये थोड़ा फर्क नजर आ रहा है आपको, बार जो वर्टिकल बार ग्राफ थी और ये देखिए, मैं वर्टिकल बार ग्राफ आपको फिर दिखा रहा हूँ। दिस इज द वर्टिकल बार ग्राफ ऑन द राइट साइड, ये ठीक है। इसमें क्या है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, बीच में गैप्स भी हैं। प्री टू चार्ट में क्या फर्क हो गया, यही चीज रिवर्स ऑर्डर में हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया एंड नो गैप्स, एंड द फर्स्ट बार इज एडजेसेंट विद द वर्टिकल एक्सिस। बस ये प्री टू चार्ट बन गई। These differences must be kept in mind। जब आपको पेपर में दिया जाता है तो आप ये डिफरेंस जब नहीं रखेंगे तो वो बार ग्राफ और प्री टू चार्ट में फर्क नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट इज द टाइम सीरीज ग्राफ। In the world of business, people are doing business since long time. Assume a person started his business 10 years before। हर साल का अगर वो डेटा का एज्यूम कर लेते हैं, प्रॉफिट का डेटा मेंटेन कर रहा है। एवरी ईयर ही हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, कोई एक खास टाइम पे वो उसको वाइंड अप करते हैं। जून का मद ले लेते हैं या दिसंबर का मद ले लेते हैं और वो एक साल में दिस मच द प्रॉफिट ही गॉट। तो after a complete year he's getting another type of value, another value, another value, and then he's getting every year a particular value for the profit। ठीक है, या मैन पावर है या उसकी कंजम्पशन है या उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, जो मटेरियल वाइज है, तो किसी भी चीज का वो डाटा बना रहा है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे पास डाटा आता है वो टाइम सीरीज कहलाता है। यानी उसके अंदर क्या होता है कि वो टाइम सीरीज जो है वो एक हफ्ते के पीरियड के लिए भी हो सकता है, एक मंथ के लिए भी होता है, एक साल के लिए हो सकता है, वीक के लिए हो सकता है, ठीक है, या 24 घंटे में टेम्परेचर है जैसे 24 घंटे का हम नोट कर रहे हैं तो ये भी एक टाइम सीरीज। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको कलेक्ट कर लें और उसको हम ड्रॉ कर दें ग्राफ से। So that is called the time series graph। A time series graph represents the data that occur over a specific period of time। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सरसाइज आपकी 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। एग्जांपल क्या है बच्चा, आपका क्वेश्चन है the average global temperatures for the following years are shown। यानी ग्लोबल टेम्परेचर आपको बता रहे हैं। draw a time series graph and comment on the trend। कि इसमें क्या कुछ कमेंट करें कि ये ग्राफ हमारा कैसे प्रोसीड कर रहा है। तो पहले आप इसको स्केचिंग करेंगे एंड देन विल बी कमेंटिंग ऑन दैट। देखिए ईयर आपको दिया हुआ है और 2004 से लेके 2008 का ये 5 सालों का डाटा उसने कलेक्ट किया। For these 5 years the temperatures have been mentioned in the next column। These are the degrees Fahrenheit। अब आगे चलते हैं। चूंकि हमने ग्राफ बनाना है, आई टोल्ड यू फॉर एवरी ग्राफ ए टाइटल मस्ट बी गिवन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इज, अब आप इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ड्रा कर लीजिए। Years you will be taking along the horizontal axis। Mostly in time series we take the years along the horizontal axis, and along the vertical axis you want to take its temperature जो भी वैल्यू दी हुई है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले लेंगे, अगर कुछ जैसे मैन पावर है तो वो ले लेंगे, ठीक है, कॉस्ट है तो कॉस्ट ले लेंगे, वट एवर इज देयर। जो भी दो वेरिएबल दिए होंगे, हमेशा दो वेरिएबल पे हमारी टाइम सीरीज बनती है। तो वन नॉर्मली टाइम पीरियड होता है तो टाइम इसमें लिया जाता है। तो ईयर्स हैव बीन मेंशन्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस 2004 से लेकर 2008। देन ऑन एवरी ईयर द डेटा हैज बीन गिवन टू यू। तो आप ऊपर देखिए, ये 2004 पर द टेम्परेचर वाज 57.9। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा, दिस वाज द ईयर एंड दिस वाज द टेम्परेचर। अब देखिए इसको कैसे प्लॉट करते हैं। At 2004 the temperature was
कितना था टेम्परेचर 57.98, ये 57.95 है और जरा सा इससे ऊपर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये 57.98। 2004 पर आप यहाँ पे सॉलिड सा डॉट लगा देंगे जो थोड़ा सा वाजे स्पॉट बना दें छोटा सा, ठीक है, डॉट बनाएंगे थोड़ा थिक टाइप का डॉट ताकि दूर से नजर आ जाए। अब बाकी को छोड़ दें। इसके बाद 2005 पे देखिए टेम्परेचर है 58.11, 58.5.10 और 0.11 थोड़ा सा यहीं पे आएगा और ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया और यहाँ पे भी आपने इस तरह सॉलिड सर्कल बना दिया, स्पॉट बना दिया, डॉट बना दिया ठीक किस्म का। 2006 पर आ गया 57.99, 57.95 ये आ गया तो 57.99 इज क्लोज टू 58 था तो ये यहाँ पे आप आ जाएंगे और ये 58 है तो ये पॉइंट आपने सॉलिड लगा दिया किसका ओवर 2006, ठीक है। अभी तो 2007 है, इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 58.01, ये जो हाइट है वो 58.01, ये 58 यहाँ है 01 थोड़ा सा ऊपर आ गया और ये आपका पॉइंट आ गया। एंड द लास्ट पॉइंट 57.88 दिस वन और फॉर दिस 2008 का जो ईयर है ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से आप ऊपर आइए वर्टिकली और देखिए 57.88 दिस वैल्यू 57.85, 88 will be close to this 90, यहाँ से आप आते जाइए और ये स्पॉट लगा दीजिए। आफ्टर pointing out all these spots you will join them with the help of a scale और उसी तरतीब के साथ ये पहला के बाद ये दूसरा पॉइंट ये था, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लें, स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। देन दिस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था तो ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, देन दिस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें। क्या बन गया ये होगी आपकी टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम देखते जाइए, कीप ऑन राइटिंग इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो आफ्टर स्लाइड इंक्रीज इन 2005, ये देखिए ये 2004 से 2005 अब ये कमेंट दे रहे हैं कि इस सीरीज के ऊपर कमेंट कीजिए। इस स्लाइड चेंज आई है ना, थोड़ी सी हाइट राइज की है, टेम्परेचर 2004 से 2005 में स्लाइड इंक्रीज करने के बाद उसके बाद ये केप्ट ऑन अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीजिंग, फिर नीचे नीचे आता गया है। द एवरेज टेम्परेचर हैज डिक्लाइन इन द नेक्स्ट ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली ये नीचे ही आता गया। तो ये कमेंट हो गया आपका कि आफ्टर अ स्लाइट इंक्रीज इन 2005 द एवरेज टेम्परेचर kept on declining in the next years. Then this was about the time series graph. 8 मिनट के बाद आपका ये भी लेक्चर थोड़ा सा ब्रेक मारेगा, उसके बाद आपने दोबारा ऑनलाइन हो जाना है, फिर हम थोड़ा सा और कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे, अभी भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होम टास्क दूंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा एंड बी इन पोजीशन ऑफ योर बुक्स। अभी ब्रेक आ रही है थोड़ी देर में, फिर आप देख लें। पाई ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन कुछ नहीं करनी है, बड़े ध्यान से सुनते जाइए और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ और फिर आप उसमें से सिलेक्ट कीजिएगा क्वेश्चंस। पाई ग्राफ इज अ सर्कल। पाई का नाम पढ़ा है आपने, पाई पढ़ते रहे इन मैथमेटिक्स। पाई सिंबल है आपके पास लिखा हुआ और इस तरह दो लाइन लगा के और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, दिस इज पाई। पाई इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। उसने क्या इजाद किया था, उसने पाई की वैल्यू इजाद की थी। कैसे? ही वाज सिटिंग, उन लोगों के पास बहुत टाइम होता था लेकिन बट दे वर नेवर यूज्ड टू वेस्ट देयर टाइम। लोग उस जमाने में जो अच्छे पढ़ने वाले थे लोग उस वक्त भी दिमाग लगाते रहते थे। तो ही ड्रू मेनी सर्कल्स, ढेर सर्कल बनाए थे, कोई छोटा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा,
फिर उसके बाद सरकमफ्रेंस उसने सबका मालूम करने का तरीका ढूंढ रखा था, तो देन ही फाउंड द सरकमफ्रेंस, छोटे बड़े मीडियम लार्ज, उससे लार्जेस्ट, सबके सरकमफ्रेंस को जब उसने डिवाइड किया उनके डायामीटर पे। याद रखिएगा पाई क्या चीज है, दिस इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद इट्स डायामीटर, circumference divided by its diameter। डायमीटर होता है ट्वाइस द रेडियस, ठीक है, 2r से डिवाइड कर दें तो 2 पाई r क्या होता है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2r डायमीटर हो गया, कट के क्या बचा पाई, राइट। तो पाई वाज अ वैल्यू which was constant throughout in every case, whether the circle was small, medium, large, larger or largest। हर केस में whenever that person divided the circumference by its diameter, he got a constant value. That constant value was 22/7, or you call it 3.1416 like that। उसी के नाम पर ये पाई ग्राफ की है, ठीक। पाई का मतलब समझ में आ गया, कभी कोई पूछे व्हाट इज पाई तो आप आएंगे इसे कांस्टेंट रेशियो whenever we divide any circumference of a circle by its diameter we get this value pi, it's a constant value 22/7। तो डेसिमल में ये रुकती नहीं है, चलती रहेगी 3.141819 पता नहीं आगे कितना, एंडलेस है ये। और अगर इससे पूछा जाए पाई एक कौन सा नंबर है, रैशनल है या इररेशनल है, तो ये इररेशनल है क्योंकि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद ये रुकता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग करा गया और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, डिफरेंट वैल्यूज नंबर आ रहे हैं, दिस इज इररेशनल नंबर पाई। The pie graph is a circle that is divided into sections according to the percentage of frequencies in each category for the distribution। बहुत अच्छी चीज है, पाई चार्ट आप लोग देखते रहते होंगे, मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर अक्सर भेजा जाता है। हमारे अपने पाकिस्तान के 4-5 जो सूबे हैं उनके अंदर आज़ाद जो है वो फटा वटा उसको भी डाल लें, तो अगर आप सिर्फ वीट की देख लें कि प्रोडक्शन क्या है तो 5 सूबों की एक इकट्ठे पिक्टोरियल व्यू बना लेते हैं सर्कल में बना के, तो आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला एरिया नजर आ जाएगा, ये पंजाब ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट प्रोविंस है ये, उसके बाद कौन सा है फिर कौन सा, तो पाई चार्ट में तमाम चीजें एट ए ग्लांस एक ही वक्त में देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं। तो अब देखिए आई एम डूइंग ए क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता आपको पेपर में कभी कोई क्वेश्चन दूंगा तो पाई चार्ट बना लेना, अच्छा, या असाइनमेंट में होगा या पेपर में होगा, अच्छा सवाल है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर आपका मखाला मीटिंग ब्रेक हो जाएगी, 2-3 मिनट है। The popular vehicle car colors are shown. Construct a pie graph for the data। ये जो कुछ मशहूर कलर्स हैं गाड़ियों के वो यहाँ पे दिखा दिए हैं इसने, उसकी परसेंटेजेस दे दी हैं इसने, पॉपुलर व्हीकल कार कलर्स। तो वाइट कार जो है कलर जो है लोगों को कितना पसंद है, 19%, सिल्वर 18%, ब्लैक 16%, red is 13%, blue 12%, grey 12% and others जो बाकी बच गए वो 10%। और टोटल इनको सब करें परसेंटेज तो हमेशा 100 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ पाई ग्राफ फॉर द डेटा, ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली। क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले आप, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि एक सर्कल बनेगा, पाई ग्राफ के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, और सर्कल पे आपको पता है कि सर्कल पे कंप्लीट कितनी डिग्रीज होती हैं, देयर आर 360 डिग्रीज, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग इट।
The frequency of each class must be converted into a proportional part of the circle. अब हमने देखना है कि कौन सी कैटेगरी का कितना प्रोपोर्शन बनेगा सर्कल का। तो सर्कल के हमने पोर्शन बनाने हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। The conversion is done by using the formula. Conversion का formula देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले f upon n को मल्टीप्लाई किया था किससे, 100 से, तो वो क्या आगे बन गई थी परसेंटेज। अब हम क्या बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। The value is same, f upon n. f is the frequency of this class and n is always the total frequency. ये जो सिग्मा f होता है ना, इसको हम n से भी शो करते हैं, याद रखिएगा। Sigma f will always be considered as n. तो डिग्रीज का फॉर्मूला क्या बन गया, f अपॉन n इंटू 360। अब आपकी पहली कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइट की 19%, तो f हो गया हमारा 19 और n हमारा 100 है ही है, ठीक है ना, n 100 है, 19 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विद 360, डिग्रीज बन गई 68.4 डिग्री वाइट कास्ट। नेक्स्ट है सिल्वर का 18% था, 18% का मतलब 18 बाय 100 और डिग्री बनानी है तो 360 डिग्री टोटल होती है सर्कल।